Unacademy Laya Special Prize Week. Get your CSIR UCNet subscription at a 15% plus 10% discount. You are going to save 15% plus 10%, total 25% discount. This offer is valid for a week. Remember the date 13 to 17 September. Discount is only applicable on 6 months, 12 months and 24 months subscription only. Enroll now. The link is in the description. Don't forget to use my referral code BOTANY10. Let's come to this subscription of Plus and Iconic. You get in Plus subscription India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDF live tests and quizzes, which is a basic plan to get you started. In Iconic you get India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDF live tests and quizzes like Plus subscription. But here you get personal coach, personalized doubt solving, preparatory study material and SOP and interview preparation. Also you can also here get 10% discount after applying my referral code, which is BOTANY10. Get Unacademy CSIR UCNet subscription. CSIR Plus pricing are for 3 months 6,250, for 3 months 6,250, for 6 months 11,600, for 12 months 14,500, for 24 months it is only 20,000. You can also get 10% discount after applying our channel referral code, which is BOTANY10. The links are given in the description. CSIR UCNet. What do we offer on Unacademy subscription? Full length courses, MCQs, previous year questions, new batch courses every week, dedicated doubt clearing sessions, weekly quizzes in every courses, full mock test on all Sundays, which is in bilingual. Okay, and Unacademy also comes with for their Iconic learners now get access to research and interview guidance also. What will the program offer? Communication skill, presentation skill, language, research methodology, synopsis writing, project proposal writing, applications of statistical tool like SPSS and Origin, etc., review of research work, instrumentation, paper writing, journal and types, mock interview subject to demand. This program will be running in September. Okay, so links are given in the description. Unacademy has came with Accelerate. Unacademy Accelerate, your chance to win 100% scholarship on 1 year subscription for CSIR UCNet subscription. So remember the date, September 5th, Sunday, 12 p.m. to 1:15 p.m. for life sciences. There will be 30 questions. Rank will get 100% scholarship on 1 year subscription, rank 2 to 10, 75% scholarship on 6 months and 1 year subscription, rank 11 to rank 25, 50% scholarship on 6 months and 1 year subscription, and rank 26 to rank 50, 25% scholarship on 6 months and 1 year subscription. Terms and conditions are given at the right side. You can enroll for this Unacademy Accelerate using the link given in the description. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। उड़ीसा का सीपेट जो हुआ है 2021 का पेपर, उसके क्वेश्चंस पे 21 पे आते हैं। 2 पार्ट हो चुका है, 21 पे आते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट काज्ड बाय राइजोपस? राइजोपस के द्वारा इनमें से क्या नहीं होता है? स्पॉयलेज ऑफ फूड, डिटोरिएशन ऑफ आर्टिकल्स, डिग्रेडेशन ऑफ डेटर्स और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो राइजोपस क्या है? एक सेप्रोफिटिक फंगस है, तो वो फूड का स्पॉयलेज करता है, डिटोरिएशन भी करता है आर्टिकल्स का, डिग्रेडेशन भी करता है लेटर्स का, लेकिन वो एंटीबायोटिक जो है राइजोपस से नहीं नोन है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ मार्केंशिया, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। तो मार्केंशिया क्या है आपका? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जब रिडक्शन डिवीज़न कब होगा? रिडक्शन डिवीज़न कब होता है? डिप्लॉयड सेल्स में होता है, आपको पता है। मियोसिस रिडक्शन डिवीज़न है। तो डिप्लॉयड जो होगा मार्केंशिया का, वो क्या होगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स में, उसके गेमेटोफाइट में। तो रिडक्शन डिवीज़न स्पोरोफाइट में होगा। दैट मीन्स स्पोरोजेनेसिस के टाइम पे होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, स्पोरोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 2 नेबरिंग ट्रैकीड्स एंड वेसल्स एक्सचेंज सैप फ्लो थ्रू। कह रहा है अगर 2 नेबरिंग ट्रैकीड्स हैं और वेसल्स हैं तो वो एक्सचेंज जो है सैप का किससे करेंगे? परफोरेटेड एंड वॉल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस, पैरेन्काइमा और पिट्स। तो देखिए अगर नेबरिंग ट्रैकीड्स या वेसल्स हैं तो देखिए ट्रैकीड्स में जो होता है वो उसमें पिट्स पाए जाते हैं, वेसल्स में एंड वॉल होता है परफोरेटेड
इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बारे में पूछा है, नेबरिंग ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो दोनों में पिट्स पाए जाते हैं, कॉमन दोनों में पिट्स है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, पिट्स। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, व्हेन मोर देन वन स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन आर साइटेड बाय एन ऑथर एज द नॉमेनक्लेचर टाइप्स विदाउट डिग्नेशन ऑफ अ होलोटाइप, सच डिजिग्नेटेड टाइप्स आर कॉल्ड। देखिए ये टैक्सोनॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है। टाइप्स में आप पढ़ते हैं होलोटाइप, आइसोटाइप, सिन टाइप, ये सब सारी चीज़ें, इसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। गूगल पे आप सर्च करें, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो जब ऑथर जो है होलोटाइप नहीं डिजिग्नेट करता है और मोर देन वन स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन साइट किया ऑथर ने, तब उसे हम क्या बोलते हैं, सिन टाइप बोलते हैं। ये डिफिनेशन ही है इनके, यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इन अ सैंपल विद 25 रिप्लिकेट्स एंड अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ 0.16 द वेरिएंस ऑफ द सैंपल विल बी। कह रहा है अगर सैंपल के 25 रिप्लिकेट्स हैं, स्टैंडर्ड एरर दिया है 0.16, वेरिएंस क्या होगा उस सैंपल का, जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है इससे हम वेरिएंस नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। कह रहा है इसमें से जो भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा है जिससे आप एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, आर्म रेशियो, पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और माइटोटिक इंडेक्स। देखिए लेंथ ऑफ क्रोमोसोम से हम क्रोमोसोम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आर्म रेशियो से भी, और कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ है, इससे भी हम एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम को पहचान सकते हैं। लेकिन माइटोटिक इंडेक्स क्या है, ये एक मेजर है सेलुलर पॉलिफरेशन चेक करने का। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ सेल अंडरगोइंग माइटोसिस इन अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आप क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सेल्स है, उसमें से कितने सेल्स जो है माइटोसिस में जा रही है, वही है माइटोटिक इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, द एमिनो एसिड्स दैट इज कोडेड बाय अ सिंगल कोडॉन इज। कह रहा है इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जिसके लिए केवल एक सिंगल कोडॉन ही है कोडॉन चार्ट में हमारे, मेथियोनिन, फेनिन, टायरोसिन, एस्पराजिन। तो आपको पता है मेथियोनिन जो है उसका केवल एक सिंगल कोडॉन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, AUG, क्योंकि मेथियोनिन को और कोई कोड करता नहीं है, तो आप इसी से गेस कर सकते थे कि फेनिन, टायरोसिन और एस्पराजिन होगा नहीं। बाकी अगर फेनिन की बात करें तो वो UUU से कोड होता है और UUC से कोड होता है। टायरोसिन किससे होता है, UAU, और UAC से। एस्पराजिन किससे कोड होता है, AAU, और AAC से। केवल मेथियोनिन है जो AUG से कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की अगर हम बात कर लें तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे आप देखेंगे ATP और कोस्टल एंजाइम जो है आपका CoASH जो लिखा है, ये दोनों का यूज़ होता है। FeDH2 और NADH प्लस H प्लस जो है ये बनता है, न कि इसमें यूज़ होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। दीज आर द प्रोडक्ट। ओके, सो बोथ द ऑप्शंस A and B आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, व्हेन क्रोमोसोमल एबरेशंस अकर इन बोथ द होमोलॉग्स इट इज क्लासिफाइड एज। कह रहा है जब क्रोमोसोम एबरेशन जो होता है, मतलब स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं, एबनॉर्मलिटीज जो आता है क्रोमोसोम में, वो अगर दोनों के दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में हो तो ये क्या कहलाता है, होमोसोमल, होमोब्रैकियल, हेट्रोसोमल और एलिलोसोमल। तो एलिलोसोमल इसका आंसर होगा। जब होमोलॉग्स में एबरेशंस होते हैं तो इसे एलिलोसोमल हम बोलते हैं। हेट्रोसोमल कब बोलेंगे, जब नॉन होमोलॉग्स क्रोमोसोम में होते हैं। होमोब्रैकियल किसे बोलेंगे, जब सेमी आर्म में क्रोमोसोम एबरेशन हो। और होमोसोमल कब बोलेंगे, जब ये आता है आप कह लीजिए उसी में है, जब खुद एक ही क्रोमोसोम के अंदर एबरेशन हो तो होमोसोमल कहलाता है। ठीक, अब ये सेम आर्म में है या डिफरेंट आर्म में है, ये डिफरेंट करेगा, होमोब्रैकियल है कि हेट्रोब्रैकियल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट, जिसे शॉर्ट में हम IRES बोलते हैं, यूकैरियोट्स के मैसेंजर आरएनए में, क्या करता है, स्टॉप करता है ट्रांसलेशन को, प्रमोट्स इस ट्रांसलेशन अंडर एडवर्स कंडीशन बाय रिक्रूटिंग न्यू राइबोसोम्स, C stimulates RNA editing of newly synthesized messenger RNA और blocked entry of ribosome when the translation process is on। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ठीक, कि जो आपका ये आयरस है यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में क्या करता है, ये क्या है, ये एक इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट्स है
और ये एक आरएनए का ही एलिमेंट है जो कि ट्रांसलेशन को अलाउ करता है कैप इंडिपेंडेंट मैनर में, ठीक, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस ग्रेटर अमाउंट में हो। ओके, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 31 to 40 कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।